गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आपको इन्फॉर्मेशन है क्या शुरू करने वाले हैं? कौन सब्जेक्ट? हाँ, यस। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोलॉजी टुडे एंड we are going to discuss biology in an integrated manner because if you look at your syllabus in prelims examination, generally they ask questions from the biology, physics and chemistry also. Okay, apart from the main. So we are going to discuss in an integrated manner. So when I am going to tell you about any topic, so before starting that topic, I am going to tell you whether it is related to the pre or mains. Okay. So today we are going to discuss two topics. One is biomolecules and another topic cell biology. Okay. So these two topics I am going to cover. This is not mentioned in the main syllabus, but it is required for your prelims examination. Okay. And also it is introduction class for the biology. Okay. So how many of you belongs to biology stream? One only. और बाकी कोई बायोलॉजी वाले नहीं हो तो कोई चिंता नहीं करना है। समझ गए ना? हो चाहे मत हो, हमको तो पढ़ना ही है। ठीक है ना? तो द फर्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू डिस्कस इज बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, ओके। एंड इसी चीज को हम ये भी बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ओके। तो now when we talk about the molecule, this term is related to the chemistry. Molecule, atoms, molecule, we generally study in the chemistry. So when we say molecules, it is the combination of atoms. Okay, right? For example, H2. H2 is what? One molecule of hydrogen. Similarly, suppose I am saying H2O, this is one molecule of water, like that. Okay. So when we say biomolecule, so those kind of molecules which are responsible to form any living organism. तो अगर हमारी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी is composed of what? Cells. Then group of cells form what? Tissues. And the group of tissues form what? Organs. And then combination of organ is what? Body, multicellular body. Okay. So when we look at the cell, you are going to observe that the composition of the cell is nothing but certain molecules, that is biomolecules. सेल जिससे बना हुआ है वही क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है। तो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसके, उन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं? वी आर सेइंग दैट बायोमोलिक्यूल्स। तो व्हाई वी आर स्टडीइंग बायोमोलिक्यूल्स? जस्ट बिकॉज दैट sometimes we heard some kind of news like nowadays young people also get heart attack. Okay. So when we look at the data, you will find due to the consumption of trans fat, approximately 70,000 death per year in India. Okay. 70,000 लोग मरते हैं केवल ट्रांस फैट की कंजम्पशन से। जो ट्रांस फैट है दैट इज वन काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इट मींस फैट इज बायोमोलिक्यूल्स। यहां पर हमको अगर कुछ जानना है तो फैट के बारे में जानना पड़ेगा, और फैट खाली अकेले पढ़ने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो कहीं से ही पूछ सकता है बायोमोलिक्यूल से। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव इन योर मेन सिलेबस डीएनए। तो डीएनए इज व्हाट? दैट इज न्यूक्लिक एसिड, वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंड न्यूक्लिक एसिड इज वन काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ओके। तो यहां पर कुछ कुछ टॉपिक जो आपके मेंस में है वहां से भी रिलेवेंट है, फंडामेंटल भी जरूरी है, और साथ ही साथ वो प्रीलिम्स के लिए भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना? सो यहां पर बस सिंपल लिख लो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स which is required, which are required, which are required to form living organism body. Okay.
molecules which are required or which are responsible to form living organism or living organism, apostrophe s लिख लेना, organism body, ठीक है, that is what, that molecules we call it what, biomolecules. Okay, so that is the simple definition. We don't require bookish definition, just we have to grab some knowledge regarding the topic. Okay, क्योंकि हमको मेंस में लिखना नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. So now I am going to list out different kinds of biomolecules now. So the first biomolecule I am writing is fat, okay, or sometimes we call it lipids, ठीक है. Apart from that, और एक और नाम भी है triglyceride, if you want to write, chemical name is triglyceride. Okay, apart from that we have what, proteins, then next is the vitamins, then next is the carbohydrate, okay. Apart from that, enzymes, then nucleic acid, okay. Fat, protein, vitamins, carbohydrate, enzymes and nucleic acid, ठीक है. ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसको हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है इनके बारे में, ठीक है ना. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम, और थोड़ा फास्ट लिखना सुनते हुए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन हमको कवर करना है, धीरे धीरे नहीं, फास्ट. देखिए ये बेसिक्स चीज़ों में हम थोड़ा फास्ट कवर करेंगे, जहां पर मेंस आएगा फिर हमको स्लो होना पड़ेगा, इसलिए पेस फ्लक्चुएट होगा अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ठीक है ना. इतनी बात समझ में आ गई सबको कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, और मैं लिस्ट आउट कर दिया हूँ ये जो है बायोमोलिक्यूल्स है. नाउ द फर्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द बायोमोलिक्यूल इज द फैट इटसेल्फ, ओके, क्योंकि वो न्यूज में है इसलिए वो आपको जानना भी जरूरी है, ठीक है. आगे बढ़िए. ओके, so now fat, also known as lipids, or sometimes we call it triglycerides, ठीक है. Fat, lipids, or chemical name is triglycerides. Now when we say fat, this biomolecule provides us energy, one of the important molecule. अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं बाहर फूड सोर्सेस से, तो what we are going to get energy from out of it. Okay, so now when we see fat, जनरली हमारे माइंड में आता है कि फैट ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि इसका नुकसान हो सकता है हमारे बॉडी में. तो क्या सभी फैट को खाने से नुकसान होता है? तो नहीं, ठीक है ना. तो क्या ज्यादा खाने से नुकसान होता है? भाई कोई भी चीज ज्यादा खाओगे तो नुकसान होगा. हमारे बॉडी में हेल्दी डाइट चाहिए, न तो बहुत कम तो डिफिशियंसी, बहुत ज्यादा तो फिर ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, समझ गए ना. तो हाइपर भी नहीं चाहिए और हाइपो भी नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, ठीक ठाक चाहिए होता है सब चीज, समझ गए ना. लेकिन कुछ चीजें हैं जो ठीक ठाक में भी कमाल कर सकती है, नेगेटिव वर्ड्स में आई एम टॉकिंग, समझ गए ना. कुछ फैट ऐसे हैं उनके बारे में पढ़ना है. तो उसके लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस different types of fats first. Okay, so now I am going to tell you about the types of fat. So we have two kinds of fats. One is saturated fat, and another one is unsaturated fat. Okay, now according to the chemistry, when we use the term saturated or unsaturated, it is related to the presence of single bond or maybe double bond or maybe triple bond by the structure. जैसे आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ते होंगे तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चेन आप देखते होंगे, अगर इस पूरे कार्बन की चेन में थ्रू आउट सिंगल बॉन्ड मौजूद है, सो दिस इज व्हाट सैचुरेटेड कंपाउंड, नॉट फैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड इटसेल्फ, सैचुरेटेड. अगर मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी मौजूद है, so in that situation we say it what, unsaturated. It is just like that कि आपने आधा पेट खाना खाया है और अभी आप और खा सकते हो, it means you are unsaturated right now, you can eat some more food. और फिर एक हो गया कि पार्टी में गए और पूरा खा लिया और फिर लास्ट में सब चीज और मीठा उठा सब पूरा यहां तक खा दिए, उसके बाद जगह ही नहीं बची है,
You are completely full. It means you are saturated. You cannot eat a single piece of anything. समझ गए ना? So that is what. So it means in case of saturated compound, we cannot add another element to that. But in case of unsaturated, डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को तोड़ के कोई और को घुसा दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो कोई और को, उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के कोई और को घुसा दो. समझ गए ना? तो वैसा है, मतलब अनसैचुरेटेड फैट जो है वो अनसैचुरेटेड इसलिए है क्योंकि उसमें और भी जुड़ सकते हैं जाके, जैसे कि इंसान. ठीक है ना? तो अब यहां पर इसकी अगर हम केमिकल डेफिनेशन देखें ना, डेफिनेशन नहीं लिखना है, बस ओनली हमको लिखना है प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड. प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड. अगर इनके स्ट्रक्चर में, किसी भी फैट के स्ट्रक्चर में, इफ वी हैव व्हाट, ओनली सिंगल बॉन्ड, दैट इट मींस दैट इज द सैचुरेटेड फैट. नाउ इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, the presence of double bond in a fat structure, then it is what? Unsaturated fat. Got it? तो ये उसकी पहचान है स्ट्रक्चर वाइज. केमिकली स्ट्रक्चर अगर हम देखें फैट की तो आपको देखने को मिलेगा सिंगल बॉन्ड है तो थ्रू आउट सैचुरेटेड फैट, और अगर डबल बॉन्ड आपको देखा तो फिर अनसैचुरेटेड फैट. नाउ विच काइंड ऑफ सोर्स हैव सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट? तो आप जो भी एनिमल से फैट कंज्यूम करते हैं, एनिमल फैट, फैट फ्रॉम द एनिमल, जैसे मिल्क, कौन सा फैट होगा? सैचुरेटेड फैट. मीट, कौन सा फैट होगा? सैचुरेटेड फैट. ओके. नाउ इफ यू लुक एट द सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, वेजिटेबल ऑयल्स, vegetable oils, that is the major source of what? Unsaturated fat. तो आप समझ में आ गया कि सोर्स क्या है. तो आपको अब ध्यान में रहेगा कि अनसैचुरेटेड फैट कहां से मिलता है और सैचुरेटेड फैट कहां से मिलता है. राइट? नाउ व्हेन वी से सैचुरेटेड फैट, तो अब मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाता है या नहीं नुकसान पहुंचाता है, ये भी हमको देखना पड़ेगा. एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कोलेस्ट्रॉल. नाउ कोलेस्ट्रॉल में ये दो टर्म यूज करना पड़ेगा हमको. एक तो एल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, और एचडीपी, सॉरी एलडीएल और एचडीएल. लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स आर देयर. ठीक है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना, एल इंडिकेट्स फॉर लिपोप्रोटीन. एक मॉडरेट डेंसिटी भी होता है, बट दो ही जानो बस, इतना काफी. लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. So when we say low density lipoprotein, that is bad one, bad cholesterol. And when we say high density lipoprotein, that is good cholesterol. That is what? Good cholesterol. Now, when we consume which fat? Saturated fat. So now what it does in our body? So this saturated fat, when we consume saturated fat, it increases the level of LDL in our body and also increases the HDL in our body. It means when we consume saturated fat, it is going to increase good cholesterol as well as bad cholesterol in the body. Okay? So good cholesterol और bad cholesterol क्या है, कैसे differentiate करेंगे? So when we say bad cholesterol, that bad cholesterol is not going to provide us energy. ये हमारे जाके हमारे ब्लड वेजल्स में जाके जमा होने लगता है. तो जैसे मैं बोल रहा हूँ बैड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेजल्स में जाता है और जाके क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है यहाँ पर जाके, और ब्लड वेजल्स को नैरो बनाएगा. क्या बना देगा? नैरो. तो यही जो है ये क्या है, LDL है. दैट इज व्हाट LDL, एंड दिस इज योर ब्लड वेजल्स. समझ गए ना? So LDL accumulates inside blood vessels and make it narrower and disrupt the flow of blood. समझ गए ना? तो ये काम कर रहा है.
नाउ तो ये HDL को भी इंक्रीज कर रहा है और HDL गुड को भी. गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड यू एनर्जी, okay, but bad cholesterol is going to accumulate in the body, that is not going to provide us energy. So in terms of that, saturated fat consume तो करना होता है but एक limited quantity में, not in high quantity. समझ गए ना भाई? पहलवान पी गया 1 किलो घी, आप पी के देख लो, पियो रोज की कटोरी घी, उतनी मेहनत कर रहे हो क्या? तो कहाँ से यूटिलाइज होगा? तो 2 महीने बाद फर्क दिख जाएगा, फिर सारी चर्बी बाहर आ जाएगी, मोटापा और बढ़ जाएगा. ठीक है ना? तो वही बात है कि खाना जरूरी है लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. समझ गए ना? क्या कर रहे हो आप लोग? बस बैठ के पढ़ ही रहे हो. अब बहुत कुछ नहीं कर रहे हो कि जाके एकदम दौड़ रहे हो, कसरत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग, खाली सो रहे हो, पढ़ रहे हो बस. थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो. इसके बाद में अनसैचुरेटेड फैट. नाउ दीज आर हेल्दी फैट्स. We call them what? Healthy fats. Why we call them healthy fats? Because it increases the level of what? It increases the level of LDL. Sorry, it decreases the level of LDL and increases the level of HDL. तो गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो खराब वाला कम है, हो रहा है इसको कंज्यूम करने से, और अच्छा वाला क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो एनर्जेटिक फील करेंगे हम. समझ गए ना? तो यहां से जो है, इसी कारण से इसको हम बोल रहे हैं दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, सॉरी हेल्दी फैट. हेल्दी फैट, वी आर सेइंग देम हेल्दी फैट. ठीक है? दैट इज व्हाट हेल्दी फैट. इतनी बात समझ में आ गई? हाँ है ना? लेकिन एक फैट ऐसा है जो कि अनसैचुरेटेड फैट ही कहलाता है, लेकिन अच्छा नहीं है, और वही है ट्रांस फैट, जिसको जानना है आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है ना? तो ट्रांस फैट इज नॉट गुड एट ऑल फॉर द हेल्थ. तो इतना लिख लिया आप लोग, आगे बढ़े. So now I am talking about trans fat first. So when we say trans fat, it is type of unsaturated fat and not good for हेल्थ. क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? देखो, कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ HDL. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो वो भी फैट करता था, सैचुरेटेड फैट. लेकिन दूसरी चीज जो है वो बहुत खतरनाक है, इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ HDL. दो धारी तलवार है ये, 2 स्वॉर्ड. अच्छी चीज को कम कर रहा है, खराब चीज को बढ़ा रहा है. अब बहुत सारे लोगों के दिल टूटेंगे कि कहां से मिलता है ये ट्रांस फैट, और सोर्स बताऊंगा तो दिल दुखेगा आप लोगों का. स्ट्रीट फूड, पेस्ट्रीज, केक, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप्स. समझ गए ना? चाहे बटर स्कॉच हो, चाहे ब्लैक फॉरेस्ट हो, चाहे रेड वेलवेट हो, कुछ भी हो, सब में ट्रांस फैट है. क्योंकि जहां भी प्रोसेस्ड क्रीम डला हुआ है, दैट इज व्हाट? ट्रांस फैट. जहां पर मल्टीपल टाइम एक ही ऑयल में फ्राइड हो रहा है चीज, ट्रांस फैट. इसलिए घर में आप समोसा बनाए खाओगे तो ट्रांस फैट नहीं होगा, क्योंकि आप ऑयल को मल्टीपल टाइम रीहीट नहीं करोगे. जब आप वहां जाओगे तो एक टीपा तेल उड़ने देंगे, उसको दिन भर गर्म करेंगे, फिर अगले दिन फिर से टीपा में डाल देंगे, और फिर अगले दिन फिर से यूज करेंगे. और उसी दिन में भी मल्टीपल टाइम, जितने बार हीटिंग करेंगे उतने बार एक्यूमुलेशन होगा किसका? ट्रांस फैट का. समझ गया? सो यहां पर लिख लो स्ट्रीट फूड मेजर सोर्स ऑफ ट्रांस फैट.
समझ गए ना। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स, पेस्ट्री, केक एंड ऑल, समझ गए ना। जितने खाने वालों हो, खाने वाले लोग, ये ध्यान रखना। अभी तो अच्छा लगेगा, सब 30 से 35 ईयर के बाद पता चलेगा क्या होगा इसके साथ। यू विल सी दैट नाउ इट इज पीपल आर गेटिंग मोर हार्ट अटैक। 10 साल पहले और 10 साल के बाद का डेटा में बहुत अंतर है। और आप 10 साल बाद देखना, और जब आप सारे लोग ना 30s क्रॉस करोगे ना, और जब जितने लोग स्ट्रीट फूड को प्रमोट कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, जिसके कारण से स्ट्रीट फूड का कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, वो बाद में पता चलेगा। जब आपकी जनरेशन उस एज में पहुंचेगी ना, उस एज में, तो पता चलेगा कि हार्ट केसेस और बढ़ रहे हैं। समझ गए ना क्यों? ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ स्ट्रीट फूड। इसीलिए इंडिया में 70,000 डेथ पर ईयर होता है केवल और केवल ट्रांस फैट कंजम्पशन, मतलब हार्ट डिसीज। और उसमें ट्रांस फैट का कंजम्पशन के कारण से ज्यादा है रोल। तो दैट इज द केस। अब यहां पर मैं कुछ आपको करंट डेटा बता रहा हूं, करंट सिनारियो, करंट डेटा रिगार्डिंग दैट। सो 70,000 डेथ पर ईयर इन इंडिया, समझ गए ना। और इसमें एक काम किया है WHO। WHO banned the use of trans fat globally in all packaged फूड। किस ईयर में? 2023, है ना। 2023 से, इस साल से कंप्लीट बैन इन द यूज ऑफ ट्रांस फैट ग्लोबली इन ऑल द पैकेज्ड फूड लाइक लेज एंड ऑल। तो आप पैकेट खरीदना आज जिसमें ऑयल होता है, जैसे चिप्स, और उसमें ट्रांस फैट जरूर लिखा रहता है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे उसमें ट्रांस फैट का परसेंटेज दिखाएगा। इंडिया में भी अगर ग्लोबली है तो इंडिया भी पार्ट हो गया। 2022 तक इंडिया जो है उसको 2% तक कैपिंग करके रखा था, समझ गए ना। बट WHO ने कंप्लीटली ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर दिया, उसको ये कर दिया। लोकल प्रोडक्ट का नहीं बोल सकते। भाई आप क्रीम रोल खा रहे हो, हल्दीराम का क्रीम रोल खा रहे हो, तो उस पर तो चेक कर सकता है फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन अब लोकल रायपुर में बन रहा है तो उसका नहीं पता, उसमें हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रांस फैट, उसको कोई थोड़ी नहीं देखने वाला है, समझ गए ना। तो ध्यान रखना। और फूड इंस्पेक्टर भी कौन सा मार छापा मारते होंगे, बहुत ज्यादा मारते भी होंगे तो पैसे ले लेते होंगे, है कि नहीं। तो वही है, फूड इंस्पेक्टर खुद ही ले ला के अल्लाह के लिए आते, हाँ पनीर पहुंचा देना 4 किलो, हो गया बस। जोक सपाट। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रांस फैट जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूज में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फैट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं मैं, जैसे मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। अनसैचुरेटेड फैट, है ना। अब अनसैचुरेटेड फैट में भी दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, और एक मिलेगा पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। एक मोनो मिलेगा और एक पॉली मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं। अगर मान लो पेपर में एग्जांपल कोड कर दिया और इसमें कौन सा फैट है बोल दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है किसी किसी स्टेट में, तो अगर आपको पूछ ले कभी भी तो फिर आप उसको ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, प्लीज राइट डाउन। ट्रांस फैट में तो मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट के एग्जांपल में लिखो। मोनो अनसैचुरेटेड फैट के एग्जांपल में आपको हेल्दी फैट का सोर्स बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑलिव ऑयल बहुत महंगा है, ठीक है ना। तो ऑलिव ऑयल जो है
इसीलिए महंगा है, ठीक है। ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैट का जो है सोर्स है। इसी इसकी बाद में लिखना कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल लगभग सारे ऑयल में रहता है, मिक्स होता है, जितने वेजिटेबल ऑयल से उसमें कैनोला ऑयल भी डालता है उसको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कैनोला ऑयल लिख लेना, जो इंडोनेशिया में होता है मेनली, इंडिया में हाँ CANOLA, CANOLA, कैनोला ऑयल, ठीक है, कैनोला ऑयल। इसके बाद में लिखो एवोकेडो, जानते हो ना, तो उसमें भी होता है। ये AVOCADO है ना, एवोकेडो, ये हो गया। अब लिखो पॉली अनसैचुरेटेड फैट। पॉली अनसैचुरेटेड फैट, अच्छा पॉली अनसैचुरेटेड फैट में भी दो कैटेगरी कर लेना, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ओमेगा 3, एक है ओमेगा 3 और एक है ओमेगा 6, ठीक है ना। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो अच्छा होना चाहिए, हाई, ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि ब्रेन के लिए सबसे अच्छा फैट कौन सा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, उसमें रेशियो किसका मेंटेन होना चाहिए, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का। सो आई एम गोइंग टू कोट द सोर्स ऑफ ओमेगा 3 राइट नाउ, राइट, फ्लैक्स सीड, FLAX, ओमेगा 3 का सोर्स लिख लो, फ्लैक्स सीड, FLAX, फ्लैक्स सीड, ठीक है ना। अलसी, इसलिए अलसी को सुबह फुला के, मतलब रात को फुला के उसका पानी पी लेना चाहिए, और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है ना, फैट को भी जल्दी। तो आपको पता ही है कि ये LDL को डिक्रीज करता है ना, हार्ट डिसीज के रिस्क को क्या करता है, कम करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखो, अब बाकी दो फिश है जो नॉनवेज वाले हैं, टूना, TUNA, टूना फिश, TUNA, और एक सलमोन, SAL, सलमान मत लिख देना, सलमोन है ना, SALMON, हाँ सालमोन जो भी है। तो ये दोनों फिश हैं, इनमें सारी फिश में नहीं, ये दो मेजर सोर्स है, याद रखना, ठीक है ना। ओमेगा 6 का लिखो, नट्स, मूंगफली है ना, नट्स, सनफ्लावर, उसके बाद देखो कॉर्न ऑयल, CORN, कॉर्न ऑयल। तो नट्स, सनफ्लावर एंड कॉर्न, क्लियर इतना। तो अनसैचुरेटेड फैट के कंजम्पशन से हार्ट डिसीज रिस्क क्या होता है, रिड्यूस होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, ओके। नाउ देखो ट्रांस फैट अगर हम मान लो खा भी रहे हैं, ठीक है, तो कितना पर डे में खाना चाहिए, 2.2 ग्राम, कितना होता है, यहां टिप में रख सकते हो आप, और आप खाते कितना हो इतना, समझ ना, समोसा खाया इतना सारा ट्रांस फैट आ गया, जो ये फ्राइड बाहर का है, तल रहा है क्या वो, चल चाइनीज पकोड़े खा रहे हैं लोग, फ्रेंच फ्राइज, है ना, वाह, कितने लोग पसंद करते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड, बाहर का बहुत खाते हैं, समझ जाओ, समझ गए ना, अच्छा बात नहीं है ये, ठीक है। मेरा काम है आप लोग को अवेयर करना। देखो 20 ग्राम तक सैचुरेटेड फैट पर डे कंजम्पशन कर सकते हैं, 20 ग्राम तक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, बट वही 2.2 ग्राम, लगभग 2 ग्राम के आसपास, बहुत कम, और ना करे तो ज्यादा बेहतर ट्रांस फैट के कंजम्पशन को। बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम ऐसा ले आते हैं जहां से ट्रांस फैट खा लेते हैं, पता नहीं चलता बाहर से, है ना, तो ध्यान रखना। सैचुरेटेड फैट जो है आपका डेयरी वाला प्रोडक्ट जो है हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल चीज हो गया, पनीर पनीर हो गया, ये सब में सैचुरेटेड फैट मिलेगा, ठीक है ना। तो वो खा सकते हैं लेकिन 20 ग्राम तक, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करेंगे बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा, तो फिर जमा ही होगा वो भी, है ना, क्लियर।
Now, another important point I missed in the starting. Fat is what kind of molecule? So it is a complex molecule. Complex molecule. Or otherwise we can call it polymer. ठीक है? So what is the simplest molecule then? तो इसका simplest molecule, simplest form क्या होगा? Simplest form है फैटी एसिड. क्या मीनिंग है सर, क्या बता रहे हो? सिंपलेस्ट कॉम्प्लेक्स अच्छे से बताओ, है ना? सुनो, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्यों जानते हो? क्योंकि आवर बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स फूड डायरेक्टली. So we are having digestive system, well developed digestive system. So the function of digestive system is to convert complex food into simplest form. तो फैट डायरेक्टली नहीं पचा पाएगा, फैटी एसिड मतलब फैट डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, फैटी एसिड को कर पाएगा बॉडी यूटिलाइज एनर्जी बनाने के लिए. समझ गए ना? तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है वो काम. एंजाइम्स करेंगे वो काम, बढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में. ठीक है ना? तो अगर पूछे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट या मोनोमर ऑफ फैट या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट, आंसर इज फैटी एसिड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं. ठीक है ना? बिल्डिंग ब्लॉक बोल लो, मोनोमर बोल लो. देखिए ये पॉलीमर है तो उसका मोनोमर क्या हो जाएगा? फैटी एसिड. सिंपलेस्ट फॉर्म बोल लो, जो भी बोलना है बोलो. ठीक है ना? so that is what fatty acid. So this is all about the fat molecule, biomolecule. इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद रखना, पूरा डिटेल दे दिया हो. क्वेश्चन अब फैट से आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रीलिम्स में, याद रखना. ठीक है ना? सो रिमेंबर अबाउट ऑल दिस इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट second biomolecule I am going to discuss is the protein. Second biomolecule is protein. This protein is also complex molecule. Okay, then what is the simplest form? What is simplest form? Simplest form of protein is what? बताओ. Amino acid. Okay, amino acid. That is the simplest form of protein. Remember this. तो हमारी बॉडी प्रोटीन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती, अमीनो एसिड कर सकती है. ठीक. इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यू विल फाइंड दैट द चेन ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म्स व्हाट? प्रोटीन. So this is, suppose I am saying this is protein molecule. Okay, तो ये एक क्या है? सिंगल यूनिट amino acid. So that single unit I am talking about is what? Amino acid. Okay, and कई बार इसके बीच के बॉन्ड को भी पूछ लेता है. So the bond between amino acid is peptide bond. Which bond it is? Peptide bond. I think DE होगा, देखना. ठीक है, peptide bond. The link between the two amino acid is called as peptide bond. जो पकड़ के रखा हुआ है, और ऐसे बनता है प्रोटीन. रिमेंबर दिस. ओके, सिंगल यूनिट को, ये सिंगल यूनिट आपस में जब मिलेंगी, मान लो समझ लो प्रोटीन एक ट्रेन है, तो उसका एक डब्बा क्या है? अमीनो एसिड. डब्बा डब्बा मिलके, वैसे मैंने बताया फैटी एसिड एक डब्बा है और फैट पूरा ट्रेन है. समझ गए ना? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब उनसे मिलके बना हुआ. ठीक है ना? रिमेंबर दिस. नाउ इस प्रोटीन प्रोवाइड्स एनर्जी, फैट मॉलिक्यूल प्रोवाइड्स एनर्जी, राइट? इज दिस बायोमॉलिक्यूल प्रोवाइड्स एनर्जी? यस और नो? यस और नो? Protein, what is the main function of protein? Main function of fat is to provide energy. Main function of fat is to provide energy. So what is the main function of protein? Growth and development of muscles. Growth and maintenance of muscles you can write. समझ गए ना? So write down the functions of protein. One function, growth and development of muscles. Growth and development of muscles. Growth and development of muscles.
ठीक है, और यू कैन राइट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ओके, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. Now, when we say protein, yeah, exactly, these biomolecules also provide us energy. ठीक है ना, remember this. Apart from that function, provides energy, you can write in some quantity. Apart from that, growth and maintenance के लिए भी जरूरी है. That is the main function. ठीक है ना? So that is about the protein. Now, can you tell me which kind of protein we have in milk? मैं कुछ प्रोटीन ऐसे पूछ रहा हूँ जनरल अवेयरनेस जो आपको मालूम होना चाहिए. केसीन प्रोटीन, विच प्रोटीन इज देयर? अबंडेंट मिल्क प्रोटीन अगर पूछा जाए तो केसीन आंसर है, केसीन, एंड वी कॉल इट मिल्क प्रोटीन, CASIN, केसीन, ओके, EN, सॉरी, केसीन, दैट इज व्हाट? मिल्क प्रोटीन. अच्छा, अगर मैं पूछूं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, नहीं, एनिमल वर्ल्ड मतलब हमारी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, पूरे एनिमल वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें उनकी बॉडी में कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है? कैन यू नेम? नो ऑप्शंस, लिखो, नोट पॉइंट. नोट पॉइंट राइट डाउन. कोलेजन, COLLAGEN, कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, कोलेजन. ठीक है, कोलाजन जो बोल रहे, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. ठीक है, नाउ राइट ऑन नेक्स्ट नोट पॉइंट. जैसा लिख रहा हूं वैसा ही लिखना. रूबिस्को, ऐसा ही कैपिटल, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखना. कंप्लीट नेम जानने की जरूरत नहीं है, तो उसका बहुत लंबा चौड़ा नेम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं जानने की. लिखो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर वी कैन राइट. ठीक है, रूबिस्को. तो रूबिस्को एक्चुअली में प्लांट में पाया जाता है. ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको बोला मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर. हाँ, तो बताऊंगा ना मैं, एंजाइम्स प्रोटीन भी हो सकते हैं. ठीक है ना, जैसे हार्मोन्स प्रोटीन हो सकते हैं वैसे कुछ एंजाइम्स भी क्या हो सकते हैं? प्रोटीन. जस्ट दे आर एंजाइम्स. ये एंजाइम है रूबिस्को प्लांट में पाया जाने वाला, लेकिन वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है क्योंकि एंजाइम वो है, वो प्रोटीन है. ठीक है ना, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इन द एंजाइम्स, डोंट वरी अबाउट दैट. ना वही स्टेटमेंट यहाँ पर मैं अगर बोलूँ आपको कि वो एंजाइम है, हालांकि मैं बोलना था कि लगभग या ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है. समझे? बाकी अगर हम देखें जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो लगभग तो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ करके. उनमें से एक एंजाइम रूबिस्को है जो प्लांट में पाया जाता है, एंड दैट इज वन काइंड ऑफ प्रोटीन. इसीलिए हमने क्या बोला उसको? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर. ओके, रिमेंबर दिस. नाउ नेक्स्ट लिखो टॉपिक, दैट इज एंजाइम. प्रोटीन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, बाकी अब छोटे छोटे, फिर कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा बड़ा होगा. तो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल इज द एंजाइम. ये कंप्लीट कर लिया ना आपने सबने? एंजाइम्स, enzymes are biocatalyst. Enzymes are biocatalyst. They are what? Biocatalyst. समझ गए?
Now, when we say biocatalyst, so the term catalyst actually we study in the chemistry. And what is the catalyst? Those chemical or compound or elements which can regulate the rate of chemical reaction. Regulate ना increase करना ना decrease करना, regulate दोनों कर सकते हैं, समझ गए ना? Now when we say biocatalyst, these are those compounds which can regulate the rate of biochemical reaction like respiration, photosynthesis maybe, digestion. Okay, so biocatalyst, it means can regulate rate of biochemical reaction. Biochemical reaction. Biochemical reaction. Biochemical reaction, ठीक है ना? तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन में एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल यू कैन राइट डाइजेशन, सबसे बेस्ट एग्जांपल. इसके अलावा रेस्पिरेशन यू कैन राइट रेस्पिरेशन. ओके, दीज आर सम बायोकेमिकल रिएक्शन. ठीक, अब एक नोट पॉइंट लिख लो. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर protein, but all enzymes are not protein. ये कैसा स्टेटमेंट लिखा दिया है सर? तो एक तो ऑलमोस्ट ऑल है और एक ऑल है. ऑलमोस्ट ऑल आर प्रोटीन बट ऑल एंजाइम्स नॉट प्रोटीन. इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क. इसमें कुछ छूट रहे हैं, इसमें सबके सब इंक्लूड हो गए. समझ गए ना? तो रिमेंबर दिस. ठीक है ना? ये स्टेटमेंट को याद रखना. क्लियर? एंजाइम्स के बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे कहां पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में. डोंट वरी अबाउट दैट. इसलिए मैं एग्जांपल कोट नहीं कर रहा हूं यहां पर. वहां भर भर के एंजाइम पढ़ना है हमको. ठीक है ना? तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज carbohydrate. Write down carbohydrate. Next topic is carbohydrate. आगे बढ़े, ये लिख लिया पूरा. So when we say carbohydrate, this is also complex molecule. अच्छा, मैंने ये चीज वहां क्यों नहीं लिखी? सोचो थोड़ा सा. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंजाइम के केस में क्यों नहीं लिखा भाई हमने? क्योंकि एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, डाइजेस्ट नहीं करते उसको. हम जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं. समझ ना? कॉम्प्लेक्स और सिंपल फॉर्म में आप वहां पर दिखोगे ज्यादातर जहां पर ये है. एंजाइम सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं एक्चुअली में, इनिशियल फॉर्म में. और वो हम बाहर से कुछ खा नहीं रहे. और जरूरी नहीं हमेशा खाने वाली चीज में कॉम्प्लेक्स. वो देखें, डीएनए को हम नहीं खाते हैं. समझ गए ना? सब में डीएनए होता है. डीएनए से हमको एनर्जी नहीं मिलता. समझ गए ना? वो तो कोड को रखे हुए. तो वहां से कोई हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा. यहाँ से हमको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो हम डाइजेस्ट करना पड़ेगा इसको यूटिलाइज करने के लिए. नाउ कैन यू टेल मी दिस बायोमोलिक्यूल प्रोवाइड्स एनर्जी? यस और नो? यस, ऑब्वियसली. तो 3 फूड हैं, मतलब 3 जो हैं सोर्सेस हैं जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन. समझ गए ना? सो प्रोवाइड्स एनर्जी. प्रोवाइड्स एनर्जी. ओके, प्रोवाइड्स एनर्जी. ठीक है. नाउ वी कॉल कार्बोहाइड्रेट एज सैकेराइड्स. क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका मीनिंग है शुगर. समझ गया? ये एक्चुअली में एक वर्ड है सैकेराइड. सैकेराइड सैकरीन वर्ड से आया है. समझ गए ना? सैकरीन का मीनिंग क्या होता है?
शुगर होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड्स हम पढ़ रहे हैं, तो मैं उसके टाइप्स आपको बता रहा हूं। सैकेराइड्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। सैकेराइड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट। नाउ इसमें 3 टाइप के सैकेराइड्स की मैं बात करने वाला हूं। द फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। सेकेंड इज द डाइसैकेराइड, एंड लास्ट वन इज द पॉलीसैकेराइड, ठीक है। नाउ व्हेन वी से मोनोसैकेराइड, मैं पहले पॉलीसैकेराइड में आपको बता रहा हूं, पॉलीसैकेराइड। So the example of polysaccharide is glycogen. Second example, starch. Third example, cellulose. ये तीनों एग्जाम्पल याद रखो, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज। So when we look at the cellulose or glycogen or starch, you are going to see this is the complex form of the saccharide. Complex form, one of the complex form. Now ग्लाइकोजन को बोलते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स या ह्यूमंस में भी। अगर पूछा जाए विच मॉलिक्यूल इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स और ह्यूमन, आंसर इज ग्लाइकोजन। नोट पॉइंट लिख लो उसके आगे, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज व्हाट, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड। ये पढ़ोगे कब, जब मैं ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा, जब इंसुलिन के बारे में बताऊंगा, तो आप समझ में आएगा ग्लाइकोजन। उस टाइम फिर से डिस्कस करूंगा, याद रखना। अब बोलूंगा कि मैं बता चुका हूं उसके बारे में, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन इज वन ऑफ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स, एंड वी आर द एनिमल्स। हम एनिमल नहीं है ना, एनिमल किंगडम में बिलोंग करते हैं। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स, ठीक है ना। नाउ स्टार्च, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स। क्या मिलता है आलू में, स्टार्च, समझ गया ना। तो वो प्लांट का पार्ट है ना, तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट इज व्हाट, स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलुलोज। व्हाट इज सेलुलोज, कहां में मौजूद होता है, प्लांट की सेल की ऊपर एक वॉल बनती है, प्लांट सेल वॉल में मौजूद होता है। तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेलुलोज। और ये सब के सब बने हुए हैं ग्लूकोज से। किससे बने हुए हैं, तो टूटने के बाद ग्लूकोज ही देगा, समझ गए ना, ठीक है। अच्छा भर गया क्या वो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। तो व्हेन वी से पॉलीसैकेराइड, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स। स्टार्च, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स। सेलुलोज, प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट। ये तीनों चीजें याद रखना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है ना, रिमेंबर दिस। तो ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज, एग्जांपल ऑफ व्हाट, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, उसके बाद डाइसैकेराइड में आएंगे। ग्लूकोज, और बताओ, फ्रक्टोज, पक्का, और एग्जांपल बताओ। बस ग्लूकोज ही है क्या एक ठो, और है कि नहीं है, ये पूछ रहा हूं मैं और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। फ्रक्टोज है कि नहीं है, यस है। और एक होता है गैलेक्टोज। These three are the monosaccharide, single molecule these are. Now अब आते हैं सुक्रोज। सुक्रोज नहीं लिखा है ना हमने, दैट इज डाइसैकेराइड। माल्टोज, दैट इज डाइसैकेराइड। और लैक्टोज, दैट इज वन, और भी है, नहीं उतना डिटेल में नहीं जाना है हम लोग को, बेसिक्स पढ़ना है, ऐसे तो बहुत सारे हैं,
लेकिन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक मॉलिक्यूल्स, एडवांस मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, दीज आर सिंगल यूनिट्स, इसीलिए इसको हम बोले मोनोसेक्राइड। अब जब यही मिलेंगे कॉम्बिनेशन में तो डाइसेक्राइड बनाएंगे, जब 2 में रहेंगे नंबर्स में, और 2 से ज्यादा अगर रहेंगे तो फिर क्या बना देंगे, पॉलीसेक्राइड। तो अभी एग्जांपल में मैं आपको कोट कर रहा हूं, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, तो आपको समझ में आ गया कि 2 मॉलिक्यूल से मिल रहे हैं इसलिए डाइसेक्राइड बोल दिया, 2 से ज्यादा होगा तो पॉलीसेक्राइड हो जाएगा, समझ गए ना। सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसके बाद में माल्टोज, maltose is the combination of 2 units of glucose. Maltose is the combination of 2 units of glucose. It means you can write glucose plus glucose. Got it? Glucose plus glucose is known as what? Maltose. और एक और लिख लो, लैक्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लिख लेना, ठीक है ना। लैक्टोज जिसमें मिल्क में पाया जाता है, कर्ड में, गैलेक्टोज, हाँ किस में मिलता है, हाँ उसको सोर्सेस बताऊंगा मैं भी, ठीक है ना। पहले तो ग्लूकोज किसमें पाया जाता है, ठीक है, और हाँ मीठी, जितनी मीठी चीज आती है इसमें ग्लूकोज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ नेचुरल में अगर हम देखें, अच्छा शुगर केन में क्या मिलता है, शुगर केन में शुगर मिलता नहीं बोलना, पेपर में सोर्सेस नहीं पूछता, पहली बात तो ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए पूछ रहा हूं मैं। शुगर केन 2 से क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो अगर सोर्स पूछना होगा ना 2 से ही पूछेगा, एक हनी, शहद में क्या होता है ये पूछेगा, और दूसरा पूछेगा शुगर केन, बाकी और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। हनी में कौन सा होता है, हनी में फ्रक्टोज होगा या ग्लूकोज होगा, या फिर सुक्रोज होगा या माल्टोज होगा, 4 ऑप्शन देना है मेरे को, 4 ऑप्शन दे दिया मैं, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, सही 4 ऑप्शन आपके किसके लिए है, शुगर केन के लिए भी। अब सोर्स सोर्स जो वाली चीजें जो है ना, ये थोड़ा आप सर्च कर सकते हो चीजों को, थोड़ी सी मेहनत करो, बायो की बुक खोलोगे कम से कम, पढ़ोगे, अरे एसी को और टेम्परेचर कम करो, इसका गर्मी लग रही है, कम करना है टेम्परेचर, कितना में है वो टेम्परेचर अभी, एकदम मिनिमम पे कर दो, इतना है 18 आसपास में कर दो, ह्यूमिडिटी हो रही है ना, चलो ठीक है, यही आपके लिए होमवर्क है आज का, मैं नहीं बता रहा हूँ रिसोर्स, लेकिन मैं सोचा था कम से कम शहद और शुगर केन में आपको मालूम होगा, लेकिन नहीं मालूम है तो आपको पढ़ने की बुक की ओर जाने की जरूरत है थोड़ी सी, बाकी चीजें तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो लिखो होमवर्क, कल पूछूंगा मैं खड़ी करके इंडिविजुअल किसी को भी, पूरा पब्लिक जैसा नहीं पूछूंगा मैं, खड़े करके पूछूंगा कल, अब धीरे धीरे पूछना पड़ेगा, खाली पढ़ा ही रहा हूँ लग रहा है मेरे को, आप लोगों को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं चल रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो राइट ऑन होमवर्क, सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड का फिर बता ही दिया हूं मैं, है ना,
पॉलीसेकेराइड क्या क्या है, तो ये तो प्लांट वगैरह मिल जाएगा, ये एनिमल की बॉडी मिल जाएगा, है ना, और ये प्लांट के में ही सेल वॉल के फॉर्म में ही मिल जाएगा। इनके सोर्स खोजना, क्वेश्चन इनसे पूछेगा, इनसे जो पूछेगा वो बता चुका हूं मैं। अगर पूछेगा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट, देन आंसर इज स्टार्च। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल, देन आंसर इज ग्लाइकोजन। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप थोड़ा देखिए, ठीक है ना। खासकर दो चीज पूछा हूं, शुगर केन और शहद में, हनी में, ठीक है ना। इसके अलावा एक और भी चीज देख लेना, अगर इतना पढ़ के आओगे ना तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में जरूर से देख लेना, ठीक है ना। वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक, मिठास डालने वाला, वो शुगर फ्री बोलते हैं ना, तो क्या डाला हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स में, क्या डाले होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में शक्कर नहीं डाला होता, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले होते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके दो चार नाम खोज के आना, जो फेमस नाम है, जो मे भी आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है कभी भी, ठीक है ना। अब कौन सा बायोमोलिक्यूल बच गया, विटामिन बच गया, विटामिन लिखो। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट लिखो, विटामिन के भी सोर्सेस पढ़ लेना, सोर्सेस नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। सोर्सेस जनरली पेपर में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। 9th या 10th क्लास के बुक में कहीं पर होगा वो विटामिन के बारे में, एक बार देख लेना। विटामिन दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये जानना जरूरी है कि ये कोट करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है विटामिन, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता हमको, समझ गया ना। इसी को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स। व्हाई वी कॉलिंग देम मेटाबोलाइट्स, बिकॉज दे रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्शंस इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिक एक्शन समझते हो आप लोग, क्या होता है मेटाबॉलिक एक्शन, बस डाइजेशन कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। देखो दो टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एक कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक। एक में कोई कंपाउंड टूटता है और एक में कोई कंपाउंड बनता है, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आई एम सेइंग रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्लूकोज बन रहा है, समझ गया। तो ऐसे अलग अलग, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं और प्लांट की बॉडी में हो रही है, तो जो लाइफ प्रोसेस में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं, सिंपल, ये समझो, ठीक है ना। एग्जाम्पल में डाइजेशन भी ले सकते हो, रेस्पिरेशन भी ले सकते हो, फोटोसिंथेसिस भी ले सकते हो प्लांट की बॉडी में। इनको रेगुलेट करने के लिए जो मॉलिक्यूल चाहिए वो है मेटाबोलाइट्स, उसी को बोलते हैं वाइटामिन। स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, लिखो। ठीक है, दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लियर, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, अब आते हैं विटामिन के टाइप्स, जहां से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, ठीक है ना। तो विटामिन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता दिया मैं, है ना। एक क्वेश्चन और भी पूछता है, आई थिंक इसके डिस्कवरी को लेकर के, सी फंक नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विटामिन को डिस्कवर किया था, सी फंक। ईयर एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, 19 समथिंग है, एक बार देख लेना उसको, ठीक है ना। ईयर जनरली नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकता है, कई पेपर में एसएससी में पूछा हुआ है, सी फंक, हु डिस्कवर्ड विटामिन, सी फंक, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक। थोड़ा फंकी है ऐसे करके याद रखना, शरारती, है ना, सी फंक नाम। तो कई पेपर में पूछा हुआ है इसलिए कोट कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं, लिख लिए पूरा ये ना, टाइप्स ऑफ विटामिन आई एम एक्सप्लेनिंग यहां। विटामिन में दो टाइप में हम क्लासिफाइड कर रहे हैं इसको, दो क्लासिफिकेशन है। एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड नेक्स्ट है फैट सोल्यूबल, ठीक है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल और
फैट सॉल्यूबल। ठीक, क्या टच हो गया पता नहीं। ठीक है, तो लिखो नीचे वाटर सॉल्युबल में लिखो विटामिन बी एंड विटामिन सी, बी और सी। ठीक है, लिखो उसको। सी, ठीक है, रिमेंबर दीज टू vitamins B and C, these are the water soluble vitamins. Now when we say fat soluble, vitamin A, vitamin D, then vitamin K, sorry vitamin E first write down, then vitamin K, ठीक है, A D E K, these four vitamins are fat soluble vitamins. Now when we say water soluble vitamins, we require this vitamin in regular basis in our body. Why? Because हम पानी पीते हैं और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो अगर पानी में ही घुला हुआ है, वाटर में ही सॉल्युबल है, तो वाटर में ही सॉल्युबल फॉर्म में बाहर भी निकल जाएगा, इसीलिए इसकी रेगुलर इनटेक जरूरी होती है हमारे बॉडी में। समझ गए ना? बट अगर ये फैट में है तो फैट तो नहीं निकल रहा है हमारी बॉडी से, तो फैट में है तो अगर मान लो एक दिन नहीं भी खाए तो भी चल जाए, अगर नहीं मिला ये विटामिन। समझ गए ना? तो द रेगुलर इनटेक इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ विटामिन बी एंड सी, इसलिए नींबू थोड़ा सा निचोड़ खाना जरूरी है, या ऐसे सोर्सेस इसमें विटामिन सी मिले। बी किस में मिलता है ये हम आपको सोर्सेस पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा कोट कर दूंगा। बी में अभी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसमें बहुत सारे विटामिन है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो अभी हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, बायोकेमिकल नेम रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। तो बेसिकली रेटिना से जुड़ा हुआ शब्द लगता है ये वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? रेटिना से। तो रेटिना में ना दो पिगमेंट्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं, एक रॉड्स और एक कोन्स। रॉड और कोन्स, रॉड और कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब या तो अंधेरे में देखने के लिए या तो फिर दिन में देखने के लिए, मतलब यही है जिसपे लाइट पर, दीज आर द लाइट सेंसिटिव, है ना? तो एक कम लाइट में आपको देखने के लिए मदद करेगा, एक ज्यादा लाइट में। समझ गए? तो उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन पिगमेंट को मेंटेन करने के लिए जो विटामिन चाहिए वो क्या है? विटामिन ए। समझ गए? और विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, इसीलिए आंख की प्रॉब्लम आती है, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। समझ गए ना? तो जुड़ा हुआ है उससे, रेटिना से जुड़ा हुआ है, समझ जाना। रेटिना की प्रॉब्लम आ रही है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नॉर्मल इंसान को भी कम दिखता है रात को, लेकिन थोड़ा बहुत लाइट रहेगा तो दिख जाएगा ना, लेकिन वैसे इंसान को वो भी नहीं दिखेगा। ठीक है ना? तो एक चीज, तो डिफिशिएंट आप ना टेबल फॉर्मेट में बनाना चाहो तो बना सकते हो, एक जगह विटामिन का नाम, फिर मतलब ये, और फिर केमिकल नेम, बायोकेमिकल नेम, और फिर डिफिशियंसी डिसीज। ठीक है ना? ऐसा करके लाइन से लिखा हूं। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना? एक नाम और ऐड कर लेना उसमें, ज़ेरोथैलेमिया, XERO, कई बार वो डिसीज भी कोड करता है। नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ कॉमा करके एक और डिसीज कोड कर लो, XERO PHTH LAMIA, ओके, XERO PHTH LAMIA, ज़ेरोथैलेमिया बोलते हैं इसको। ठीक है? ज़ेरोथैलेमिया। तो ये भी एक नाइट मतलब आईज की ही प्रॉब्लम है, बहुत ड्राई हो जाता है आईज वगैरह, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो डार्कनेस में पुअर विजन, तो कंप्लीटली विजन का लॉस्ट हो जाता है डार्क में। ठीक है? तो ये भी होता है। अब लिखो विटामिन डी के बारे में, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, CALCIFEROL, कैल्सीफेरॉल। ओके, so this vitamin is required for what? Bone health, है ना? वीक मसल्स, मतलब सॉरी बोन क्या हो जाते हैं? वीक होते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं।
तो विटामिन डी किस में मिलता है? सनलाइट में, राइट? सनलाइट में मौजूद होता है क्या? गलत। अगर सनलाइट में विटामिन डी होता तो दिन भर मिलता। अर्ली मॉर्निंग सनराइज में होता है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि फोटोन में एनर्जी है और फोटोन में विटामिन भी है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? देन इट इज रॉन्ग, मिसकंसेप्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वी कैन से in the presence of some specific wavelength present in the sunlight, जब वो स्ट्राइक करते हैं स्किन में तो स्किन के नीचे एक केमिकल होता है, वो ब्रेक डाउन होता है और तब सिंथेसाइज होता है क्या? विटामिन डी बिलो आवर स्किन। सन की लाइट में कौन सा विटामिन डी है? कोई विटामिन डी नहीं है सन की लाइट में। सन की लाइट से विटामिन डी बनता है। ये स्कूल का रटा हुआ ज्ञान है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है, ऐसा रटते हैं ना, तो दैट इज रॉन्ग। जैसे आपको पता है कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता। उस कुत्ते के अगर सलाइवा में रेप्टो वायरस है तो रेबीज होगा। सारा कुत्ता काटेगा तो नहीं होगा। आप समझ गए ना? सभी टाइप के में नहीं होगा, जिसके में रेप्टो वायरस है तब होगा। तो डॉग इज नॉट कॉज, डॉग इज वेक्टर ऑफ दैट वायरस। मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता, मच्छर वेक्टर है, वो वाहक है, वो लेकर के जाता है किसको? प्लाज्मोडियम को, प्रोटोजोआ को, तब जब होता है। तो दैट इज वेक्टर। वेक्टर और कॉज में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। समझ गए ना? यहां पर वही चीज है कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में नहीं मिलता, सूर्य के प्रकाश के कारण से सिंथेसाइज होता है। समझ गए ना? बिलो आवर स्किन, रिमेंबर दिस। तो विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, क्या होता है इसके? रिकेट्स। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। लिखो RICKETS, ओके। मतलब ये बोन की प्रॉब्लम है ना, बोन सॉफ्ट होने लगते हैं। अच्छा, जितने भी बैक पेन और बैक पेन वाली जो प्रॉब्लम है वो खासकर इसलिए होती है। विटामिन डी की डिफिशियंसी आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? 10 बजे तक सो रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा विटामिन डी? 10 बजे तक सोएंगे, सूर्य के प्रकाश में आएंगे नहीं, घुसे हुए हैं रूम के अंदर में, तो कहाँ से मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में बहुत, ठीक है फैट सोल्यूबल है तो कब तक फैट में बचे रहेगा? समझ गए ना? इसलिए हर 2-3 दिन में सुबह सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में एक्सपोज करना जरूरी है बॉडी को, अदरवाइज दिक्कत है। जो लोग 11-11 बजे सोते हैं, लगातार आदत रहती है, उनके विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है और फैटी बोन कमजोर होने लगता है और फिर बैक पेन होगा और फिर इंजेक्शन लगेगा मस्त अंदर तक बोन मैरो में, और इतना तकलीफ होती है कि मानो बहुत ज्यादा पेन होता है। वो विटामिन डी का इंजेक्शन लगवाना बहुत पेनफुल होता है। हाँ, सीधा बोन्स में लगता है वो, बोन मैरो की बैक साइड में, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है ना? नाउ हाँ, डी का मेन सोर्स एक्सपोज योरसेल्फ इन द सनलाइट, एक्सपोजर। हाँ, स्किन में रहता नहीं है, स्किन में एक केमिकल रहता है, ठीक है? वो केमिकल जब टूटता है ना तो उसके कारण से वो सिंथेसाइज होता है। नहीं नहीं नहीं, फूड में कुछ कुछ में होता है, वो एडेड होता है। आप देखना ऑयल वगैरह में विटामिन डी डालते हैं, आप देखना ऑयल में ए और डी एडेड होता है। तो अगर नहीं पाया जाता कहीं पर तो फिर उसको ऐड किया जाता है। फोर्टिफिकेशन इसी को तो बोलते हैं। फोर्टिफाइड राइस क्या है? विटामिन ए को डाल दिया गया उसमें, इसीलिए करते हैं। ठीक है ना? तो वैसा हम करते हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है या कंपनी क्या करती है, इसको ऐड कर देती है अगर किसी नॉर्मल सोर्स में नहीं मिलता तो हमको खाने के लिए। ठीक है ना? तो वो हम करते हैं। इसके बाद में लिखो नेक्स्ट, आपका विटामिन ई, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, TOCOPHEROL, ठीक है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज व्हाट?
BUT विटामिन, हाँ ब्यूटी, अब सब समझ गए, ब्यूटी पार्लर वाले लोग समझ गए। विटामिन ई कैप्सूल्स आती है ना स्किन में, अरे बाप रे सबको पता है, ठीक है। तो ब्यूटी वाइटामिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कमर्शियल लेवल पे, स्किन केयर में, ब्यूटी पार्लर में, है ना। तो इसीलिए इसको ब्यूटी वाइटामिन बोलते हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिशियंसी से कोई प्रॉब्लम आती है, ब्यूटी वाइटामिन है वो ठीक है, चलो स्किन केयर वगैरह जरूरी है, तो मतलब एज को भी कम करने में मदद करेगा, कम मतलब ऐसे कम नहीं होगी, एंटी एजिंग है इस टाइप का है, समझ गए ना। मतलब इससे क्या बोलते हैं इसको, झुर्रियां नहीं आती, रिंकल्स नहीं आती एग्जैक्ट स्किन में, है ना, इसलिए स्किन केयर में इसको यूज करते हैं। लेकिन ये तो सब तो ठीक है, ब्यूटी ब्यूटी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जाना ही है एक दिन, ये शरीर नासवान है, आज है कल नहीं होगा, समझ गया ना। तो कितने दिन तक मेंटेन करोगे। लेकिन अगर मान लो किसी फीमेल में विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाए तो इससे फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, समझ गए ना। तो विटामिन ई की डिफिशियंसी फीमेल में नहीं होना चाहिए, तो लिखो उसमें प्रॉब्लम में लिखो, विटामिन ई की डिफिशियंसी से जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लेस फर्टिलिटी लिख लो, लेस फर्टिलिटी, लेस फर्टिलिटी, इसी को हम स्टेराइल बोलते हैं ना, स्टेरिलिटी, तो लेस फर्टिलिटी लिख लो, सिंपल, ध्यान रखना। अब आते हैं विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है, देखो अगर आपको पूछे कि विच विटामिन गेट सिंथेसाइज इन बॉडी, तो क्या बोलोगे। विटामिन डी तो पता ही है ना, उसमें लिख लेना स्टेरिलिटी, अगर लिखना चाहो तो STERILITY ना, इसमें लेस फर्टिलिटी में कई बार मान लो लेस फर्टिलिटी कोड नहीं करेगा तो वो वर्ड कोड करेगा स्टेरिलिटी, है ना, तो वो लिख लेना STERILITY, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन के, विटामिन के की डिफिशियंसी, विटामिन के का तो पहले नाम लिख लो, पाइलोक्विनोन, पाइलोक्विनोन, पाइलो PHYLLO QUINONE, एक और नाम भी है नेफ्थोक्विनोन भी बोलते हैं, NAPTHO, नेफ्थोक्विनोन, और करके लिखना है तो लिख लेना, कोई भी नाम कोट हो सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, नेफ्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, ठीक है, दीज आर द बायोकेमिकल नेम, NAPTHO, नेफ्थो, ओके, नेफ्थोक्विनोन, फाइलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन, NAPTHO, ठीक है। नाउ यह है क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड, और इसी की अगर कमी होगी तो हेमरेज होता है, समझ गए ना। तो रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग, तो इसमें आप लिख लो, क्योंकि वीकनेस मतलब हम डिफिशियंसी लिख रहे हैं ना, तो इसमें लिख लो इन सिंपल वर्ड फेलियर टू क्लॉट ब्लड, ये होता है इससे, और फिर उसी आगे आप लिख लेना हेमरेज, फेलियर टू क्लॉट ब्लड पहले लिखो, फेलियर टू क्लॉट ब्लड, ठीक है ना, उसके बाद में लिखो हेमरेज, HAEMO, ओके, RRHAGE, हेमरेज, ओके। तो ये सारे के सारे डिफिशियंसी डिसीज है, DD, डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है ना। नाउ vitamin K and vitamin D get synthesized inside our body. So which two vitamins get synthesized in our body? Vitamin D and K. तो vitamin D तो स्किन के नीचे below skin and vitamin K in our gut, intestine, समझ गए ना, वहां पर बैक्टीरिया होते हैं, वो विटामिन के को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, रिमेंबर दिस। और ये ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए जरूरी है, ये ब्लड की क्लॉटिंग में पढ़ाऊंगा मैं, टू एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम एंड विटामिन के, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे।
So this is all about the fat soluble vitamins. Now we are going to discuss about the water soluble. First write down about the vitamin C. विटामिन सी का नाम मालूम होगा सबको मेरे ख्याल से. विटामिन सी को क्या बोलते हैं बायोकेमिकल नेम? साइट्रिक एसिड नहीं बोलते हैं इसको, मैं जान रहा था कोई ना कोई साइट्रिक एसिड बोलेगा. एस्कॉर्बिक एसिड, राइट. यही तो गलती है, प्रीलिम्स में देगा ऑप्शन फिर साइट्रिक एसिड, वो सोर्स है, दैट इज सोर्स. समझ गए ना. मेन इसका बायोकेमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड. यही इसीलिए पूछा मैं. जानता हूँ कोई हमेशा जहां भी मैं क्लास लेता हूँ कोई ना कोई बोलते ही है सिट्रिक एसिड, तो उसको करेक्ट करना पड़ता है ताकि याद रहे पूरी क्लास को. नहीं है वो, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक. तो जनरली हम जानते हैं सिट्रिक एसिड में मतलब साइट्रस फ्रूट्स में होता है तो हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड, नहीं सिट्रिक एसिड. ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड. रिमेंबर नाम एस्कॉर्बिक एसिड फेमस है, उसको ध्यान में रखना. तो ये तो हो गया. इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? स्कर्वी. SCURVY, SCURVY, स्कर्वी. ठीक है, ये लिख लेना SCURVY, है ना. हाँ यही स्पेलिंग. इसमें ब्लीडिंग गम्स होता है ना, और कोई भी वोंड होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा हील होने में, इसकी डिफिशियंसी होती है. तो स्कर्वी में यही प्रॉब्लम आती है. ठीक है, ध्यान रखना. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल विटामिन. नाउ विटामिन बी. विटामिन बी को अलग से पढ़ना पड़ेगा. इतना पूरा लिख लिए हो आप लोग, मैं अगले स्लाइड में जा रहा हूँ. ठीक है. विटामिन बी नेक्स्ट. ठीक है. तो वी कॉल इट व्हाट? कॉम्प्लेक्स विटामिन. इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट खाते हो और विटामिन बी की डिफिशियंसी होती है तो माउथ अल्सर होता है ना. केमिकल नेम एक नहीं है, जितने टाइप पढ़ेंगे सबका एक अपना अपना केमिकल नेम होगा. इसलिए तो कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हमको पढ़ने. ठीक है ना. तो विटामिन बी में हम सबसे पहले B1 देख रहे हैं. B1, विटामिन B1. इसका नाम, सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जो बताऊंगा बस उसी का नाम लिख लेना, और सारे विटामिन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. जो बस हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और डिफिशियंसी डिसीज भी सबका नहीं, जो जो पॉइंट्स बताऊंगा बस उतना ही याद रखना, बाकी इधर उधर नहीं करना है. तो B1 का नाम है थायमिन. ठीक है, THIAMINE, थायमिन. और यहां पर लिख लेना इसकी डिफिशियंसी से होता है बेरी. ठीक है, ये डिसीज होता है. इसके बाद नेक्स्ट लिखो विटामिन B2, राइबोफ्लेविन. मिल्क में पाया जाता है, काऊ मिल्क में खासकर राइबोफ्लेविन. ठीक है ना. जो काऊ के मिल्क में येलोनेस जो होता है वो इसी कारण से होता है. ठीक है ना. इसके बाद में विटामिन B3, डिफिशियंसी डिसीज जरूरत नहीं है इसकी. B3 इसको बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं नायसिन. नायसिन इसकी डिफिशियंसी से जो होता है वो आपको मालूम होना जरूरी है. पेलाग्रा, PELLAGRA. सब डिसीज क्या होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना, फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए. इसके बाद विटामिन B4 याद रखने की जरूरत नहीं है. B5 याद रखना, जो पूछता है पेंटोथेनिक एसिड. पेंटोथेनिक एसिड. ठीक है. इसके बाद में विटामिन B6 और B9 और B12, ये इतने विटामिन और जानना है आपको. ठीक है. विटामिन B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन. पायरिडॉक्सिन. विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन. B9 सर्च करो, बायोकेमिकल नेम स्किप हो गया मेरे दिमाग से, बहुत फेमस नहीं है. फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड, यस, फॉलिक एसिड. ठीक है. सो दीज आर द बायोकेमिकल नेम. नाउ
इन तीनों विटामिन को याद रखना, इससे किसी न किसी टाइप का एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, रिमेंबर दिस। B5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, THANIC, ठीक है, THENIC, सॉरी ENIC होगा, पेंटोथेनिक एसिड। ओके, पैराडॉक्सिन और सही। अब याद रखना 6, 9 और 12 अगर पूछे कि किन किन विटामिन से एनीमिया होता है, अलग अलग टाइप के एनीमिया होते हैं, किसी में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, अलग अलग टाइप के एनीमिया है। तो एनीमिया से जुड़े हुए विटामिन B6, B9 और B12, जनरली हम सुनते हैं आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया होता है, बट कुछ विटामिन होते हैं उनकी डिफिशियंसी से भी एनीमिया हो सकता है, जैसे कि 6, 9 और 12। इतना याद रखना, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और याद रखना है, इफ दे विल आस्क क्वेश्चन लाइक दैट, विच विटामिन B हैव ट्रेसेस ऑफ कोबाल्ट इन इट, खोजो किसके नाम में कोबाल्ट जैसा टर्म आ रहा है। B12 साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, कोबाल्ट, आप देख रहे हो ना यहाँ पर टर्म कोबाल्ट जैसा लग रहा है ना, तो ब्रैकेट में ट्रेसेस ऑफ कोबाल्ट, प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ कोबाल्ट या ट्रेसेस ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, COBALT, कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट। तो ये मौजूद होता है किसमें? B12 में, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है कई जगह, ठीक है। So this is all about the vitamins part. Now next is the nucleic acid, last biomolecules, nucleic acid। बट मैं यहां पर न्यूक्लिक एसिड को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ताकि जब मेंस में उन टॉपिक को डिस्कस करें तो वहां आधा हमारा खत्म हो जाए रहेगा, समझ ना। तो स्ट्रक्चर वगैरह सब मैं अभी बता दूंगा, फिर वहां बाकी जो चीज बच रहेगा वो बताऊंगा, जैसे मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट वहां पढ़ने रहेंगे हमको, वो सब वहां बताऊंगा। फिर मैं डीएनए के स्ट्रक्चर फिर से वहां पर नहीं जाऊंगा पढ़ाने के लिए, वो यही पढ़ा रहा हूं, याद रखो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया इतना सारा चीज, जितना बताया हूं इतना सब याद रखना, प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। नाउ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड one of the most important biomolecules we have. Why? साइंटिस्ट पहले जानना चाह रहे थे कि भाई इंसान अपने मदर और फादर से कुछ तो कैरेक्टर्स लेके आता है, इससे सिमिलरिटी शो करता है। तू अपने मम्मी पे गई है, पापा पे गई, ऐसा बोलते हैं ना, तो कैसे चले गए उस पे, इसका रीजन जानने के लिए साइंटिस्ट पहले स्टडी कर रहे थे। तो फिर वो किसको स्टडी करेंगे? बायोमोलिक्यूल्स को ही, ये तो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है जो हमारे सेल्स को बनाने का काम करते हैं। तो फिर उन्होंने सर्च करना शुरू किया, क्या कार्बोहाइड्रेट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेकर के जा रहा है ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को? तो नहीं, वो क्या करते थे, कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करते थे जिससे जो अंदर के वही मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाए, ग्लो करने लग जाए, समझ लो। और आगे आने वाले जनरेशन में अगर वो ग्लो करता हुआ दिखा, मतलब वही ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसा नहीं मिला कार्बन, ना प्रोटीन में मिला, ना एंजाइम में मिला, ना विटामिन में मिला, किसी में नहीं मिला। एक बायोमोलिक्यूल था जो ऐसा दिखाया, वो था न्यूक्लिक एसिड। सो दैट इज व्हाई वी कॉल न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसी को हमने क्या बोला? जेनेटिक मटेरियल बोल दिया इसको हमने। तो विच बायोमोलिक्यूल इज जेनेटिक मटेरियल? द आंसर इज न्यूक्लिक एसिड। समझ गए ना? And what is the meaning of genetic material? Those material which are responsible for transfer the characters or traits from one generation to another. Okay, so those material which are responsible for transfer traits मतलब characters है ना, traits, or you can write characters from one generation to another,
अनदर, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर, एक से दूसरे जनरेशन में जो आपके कैरेक्टर्स हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है उसी को हम जेनेटिक मटेरियल, और वो कौन सा है, न्यूक्लिक ना। उसके बाद में पता चला कि दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड है, एक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब फिर टेंशन, पता तो किए चलो कि न्यूक्लिक एसिड है, तो अब डीएनए भी है और आरएनए भी होता है, दो टाइप से पता चला, तो अब कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, अब कौन सा न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है। तो इन जनरल बोला गया कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है, बट ऐसा सब में जरूरी नहीं है। तो फिर यहां पर एक लाइन आई कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, है ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज, बट some of the organism or you can write microorganism, okay, microorganism, ठीक है, RNA as genetic material, example वायरस, वायरस आरएनए वायरस होता है, ठीक है, डीएनए वायरस भी होता है, लेकिन समझ गया ना, डीएनए वाला वायरस भी होता है, जरूरी नहीं है कि सभी वायरस में वो। ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था पिछले साल, एक क्वेश्चन, यस, हाँ कहाँ समझ में आएगा, इतना जानोगे तब तो समझ में आएगा ना, जानना पड़ता है उसके लिए, डीप नॉलेज, बायो में डीप नॉलेज चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं आएगा, नहीं बनेगा प्रीलिम्स अगर वैसे क्वेश्चन आएंगे तो। क्या चीज, अरे नहीं, अभी अभी आप समझ जाओगे, मैं आपको स्टेटमेंट देने वाला हूँ, अभी आप समझ जाओगे कि इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट देखो कैसे पढ़ते हैं अभी, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में है उसको सॉल्व करने के लिए, याद रखना इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है डीएनए और आरएनए से जुड़ी हुई किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर क्वेश्चन पूछे सॉल्व करने के लिए। अब स्टेटमेंट सुनो, ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ट्रू और फॉल्स, ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, फॉल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिखा हूं मैं, नॉट ऑल, या मैं ऐसा क्वेश्चन डिजाइन कर दिया स्टेटमेंट, इन जनरल ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, तो इन जनरल जस्ट ट्रू, अगर मोस्ट ऑफ द बोल रहे हैं मतलब जनरल बात कर रहे हैं ना हम लोग, इन जनरल। नाउ अनदर स्टेटमेंट, इन जनरल viruses have DNA as genetic material, false, most of the virus have RNA as genetic material, समझ गए ना, but some of the viruses are there which have DNA as genetic material as well, तो जो मोस्ट वाला है वो इन जनरल है, ऐसी तो क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, और वो सारा इंफॉर्मेशन यहीं से है, इसी दो लाइन से, समझ गया। आर वो आरएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट आरएनए और डीएनए, वो घुमाने के लिए दिया हुआ है, उसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि वो वैक्सीन से बना हुआ है ना, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन पूछा था। बाकी आपको उसको इन जनरल क्वेश्चन में कुछ तो घुमा के देगा, ठीक है ना। तो इन जनरल वायरस में क्या होता है, आरएनए, अब चाहे आरएनए लिखे चाहे आरएनए लिखे, समझ गया ना, नेचुरल वायरस की बात कर रहा हूं मैं, उसमें तो आरएनए होगा, अगर मॉडिफाइड है तो फिर आरएनए, उसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इन जनरल वायरसेस हैव व्हाट, आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, बट कुछ वायरस है, सम ऑफ द वायरस आर देयर व्हिच हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये पॉइंट्स आपके यहीं से बन जाएंगे, इसलिए फोकस्ड होके अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करना, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट में,
स्ट्रक्चरल पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी किसी का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हमने, इसका पढ़ेंगे क्यों, मेंस के सिलेबस में, ये टॉपिक मेंस के सिलेबस में है, ठीक है ना। घड़ी घड़ी नहीं देखो, 9 बजे छोड़ दूंगा मैं, टेंशन मत क्यों ले रहे हो इतना, अभी 10 मिनट है, कुछ तो हो ही जाएगा आराम से। चलो आगे। तो अभी हम जो है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आरएनए और डीएनए छोड़ दो, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली इज पॉलीमर। क्या ये, मतलब ट्रेन की तरह है, किसकी तरह है, ट्रेन की तरह। तो इसका मोनोमर क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, मोनोमर क्या है इसका, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर। समझो ऐसा कि ऐसे ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या है, ये सब न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे ना तो जाकर के एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड बनेगा, ऐसा, समझ गए ना, क्लियर। अब इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल। देखो एक न्यूक्लियोटाइड, फिर 2, फिर 3 और जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड का चेन बनेगा, ठीक है ना। इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए 3 केमिकल्स आर देयर। वन इज द पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट phosphate group, and third one is the nitrogenous base, third is the nitrogenous base. So these are the 3 chemicals or compounds we can say forms the one link nucleotide. और ऐसे खूब सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, गॉट इट। अब इसमें पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर से चेंज होगा कि वो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो डीएनए और आरएनए होना स्ट्रक्चर वाइज एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, वो है पेंटोज शुगर। समझ गए इतनी बात। अब वो क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे कल की क्लास में। एक जगह OH की जगह O हट जाएगा और केवल H रह जाएगा। तो अगर O हट जाएगा तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी, हट गया ऑक्सी, ऑक्सीजन हट गया तो भाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बन जाता है। और अगर O रहा तो क्या बन जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड बन जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड को बनाते समय पेंटोज शुगर से अगर एक जगह से ऑक्सीजन हटा लिया जाए, वो कहां हटाएंगे वो देखेंगे हम, तो उससे बनता है जो चेन बनेगी वो होगा डीएनए की चेन। और अगर मान लो वो रह गया पेंटोज शुगर में, तो फिर उससे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा और जो चेन बनेगी वो किसकी होगी, आरएनए की चेन। बस उतनी ही फर्क है। बाकी डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड वो अलग बात है, अंदर में स्ट्रक्चर में बता रहा हूं मैं क्या डिफरेंस है। तो डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना, डीऑक्सी किससे, किस मॉलिक्यूल से, पेंटोज शुगर से, समझ गए ना। तो बस वहीं से ही डिफाइंड होता है नाम, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, क्लियर। तो उस नाम को डिसाइड करने के लिए जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, पेंटोज। अब ध्यान सुनो, एक बात बता रहा हूं मैं, ये जो आप स्ट्रैंड देखते हो ना ऐसा, ये 2 स्ट्रैंड है। अब मैं क्या किसको क्या बोलते हैं बता रहा हूं, ये स्ट्रैंड्स है। इस स्ट्रैंड को बनाने के लिए, मतलब ये जो है ना, इसको बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से, एक है पेंटोज, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए या आरएनए, जो भी है ना, डीएनए ऑब्लिक
RNA। क्लियर? क्योंकि जो स्ट्रैंड को बना रहा है वही है दो केमिकल, तो ये किस लिए है। फिर आता है बीच का लिंक, ये जानते हो ये वाला लिंक, ऐसा देखते हो ना आप, यही लिंक क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। यही लिंक क्या है, नाइट्रोजनस बेस, और यही बेस के सीक्वेंस बनाते हैं जेनेटिक कोड, जीन। तो नाइट्रोजनस बेस ही क्या बनाते हैं, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस क्या है वो, जीन। जीन किससे बन रहा है, इस नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस से बन रहा है, वो हम कल पढ़ेंगे कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, समझ गए ना। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इनसाइड डीएनए और आरएनए इज कॉल्ड व्हाट, जीन, जेनेटिक कोड। और जिसके अंदर वो प्रिजर्व है, उस स्ट्रैंड को बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, बैकबोन ऑफ डीएनए और मे बी आरएनए। समझ गए ना। तो फिर डीएनए और आरएनए कोड चेंज हो जाता है ना, म्यूटेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। भाई केमिकल तो है, क्या है ये सब, केमिकल ही तो है ना। और केमिकल पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इफेक्ट, यस, दे अफेक्ट द एक्सटर्नल मतलब स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली डीएनए स्ट्रक्चर, इसीलिए म्यूटेशन होता है। तो ये वेरिएशंस आने के ज्यादा चांसेस और तेजी से किसमें होते हैं, आरएनए वाले में हो गए, डीएनए वाले में, आरएनए में। इसलिए वायरस जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है क्योंकि एक्सपोज है ना, ये दो तरीके से पैक है, दो जगह से। और जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है तो खुला हुआ है, तो आसानी से चेंज हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो केमिकल ही तो है, बदल जाएगा, बदल गया तो खत्म, फिर नया कोड, क्योंकि सीक्वेंस बदल गया तो नया कोड, नया वैरायटी। इसलिए वायरस जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, अपने कोड को चेंज कर लेता है। समझ गए ना। तो अब हम कल जो है ना, अभी तो मैंने आपको बेसिक्स ही बताया स्ट्रक्चर में, कल इसमें और डिटेल में जाएंगे हम लोग और स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कैसे कोई कैरेक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर दिखता है वो भी हम कल डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में सेल डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपके मेंस का पार्ट है, याद रखना। आपको डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पूछ सकता है पेपर में, मेंस में, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो कल कुछ चीज डिटेल भी कराऊंगा इस समय, ठीक है, क्लियर। चलो आज की क्लास इतनी ही है। तो आज हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सारी चीजें प्रॉपर रिवाइज कर लेना, ठीक है। जिसका बायो बहुत ही ज्यादा वीक है, गो फॉर 6 to 10th NCERT, केवल बायो के चैप्टर्स पढ़ लो फटाफट से, पूरा बुक मत पढ़ते रहना जाके। राइट नाउ जिसका वीक है, लगता है आपको, है ना, कि टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, क्योंकि टर्मिनोलॉजी तो टर्मिनोलॉजी ही है, वो दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए प्री रिक्वेस्ट नॉलेज जरूरी है, वो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें जा करके। जिनको बिल्कुल बायो के शब्द ही समझ में ऊपर से निकल जाते हैं तो उनके लिए मस्ट है। अदरवाइज जिनको थोड़ा बहुत आता है 9th और 10th का पढ़ लें, समझ गए ना, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। तो जिनका ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत आता है टर्मिनोलॉजी वगैरह, 9th 10th एक बार पढ़ लो। 4-4 3-3 4 चैप्टर होंगे हर बुक में बायो के, है ना, उतने चैप्टर पढ़ लो जाके, ठीक है। और जिनको बिल्कुल नहीं आता 6 से 8 पढ़ना, क्योंकि बेसिक्स बच्चों को पढ़ाते हैं वैसा है उसमें, फिर आप 9th 10th का बुक आसानी से पढ़ पाओगे, और उतना पढ़ लोगे और क्लास का पढ़ लिए, फिर बायो के लिए कोई सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 6 से 10th की बुक पढ़ो और क्लास के नोट्स पढ़ो। 11th 12th के कुछ सेक्शंस कवर करने पड़ते हैं, बट वो मैं क्लास में डिक्टेट करा दूंगा, क्लास में अच्छे समझा दूंगा, तो आपको 11th 12th की बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी बायोलॉजी में एटलीस्ट। और आपके पास क्लास नोट्स में इनफ कंटेंट होंगे कि आप टेंशन में आ जाओगे कि 15 मार्क्स में तो कैसे लिखे, इतना पढ़ोगे आप बायो में। तो बुक पढ़ जाके खंगालने की जरूरत नहीं है, खासकर 11th 12th की, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास में इनफ कंटेंट होंगे प्रीलिम्स के आंसर लगाने के लिए और मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए, आप उतना ही कर लो पहले, समझ गए ना। और बायो का सेक्शन बड़ा है आपके पार्ट 1 में, याद रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत टाइम नहीं लगता, इसको कवर करने में एटलीस्ट 30 आवर्स लगेंगे,
30 आवर्स मिनिमम। फिजिक्स केमिस्ट्री मेन से कवर करने हार्डली केमिस्ट्री 12-13 घंटे लगते हैं, वही 12-13-15 अंडर 15 आवर्स वी कैन कवर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अलग सेपरेटली, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें टाइम लगता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो नॉन बायो बैकग्राउंड के हैं, सपोज, है ना। तो आप लोग को अगर नहीं कुछ चीज़ें जो है समझ में आती हैं तो थोड़ा सा आप पहले से पढ़ के आओ, है ना, वो जरूरी है। हालांकि मैं पूरा बेसिक्स से बता रहा हूँ, लेकिन वो बेसिक्स की भी टर्मिनोलॉजी अगर आपको ध्यान में नहीं है तो एक को पढ़ना पड़ेगा आपको, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ 6 से लेकर 8 की बुक नहीं पढ़ सकते, हमको सिलेबस पढ़ना होगा, याद रखना। तो उसके लिए जो 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 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, फिर बेसिक चीज़ें वो मैं कवर कर दूंगा, लेकिन अगर आपको उतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको एक बार बुक पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, समझ गए ना। तो एक बार पढ़ लोगे, बस एक ही बार पढ़ना है, उन चैप्टर्स को पढ़ते जाओ बस, हर क्लास में उसका थोड़ा एडवांस मिलेगा, वही रहेगा। सेल्स आप 6 में वही पढ़ोगे, बाद में 9th में वही पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा वहां और इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, बस यही तो रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार गो थ्रू दैट, ठीक है, चलो, थैंक यू। एनी डाउट टिल हियर? कोई भी डाउट है तो हमने आज एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, ठीक है ना, विटामिन पढ़ा है, ये विटामिन के जितने पॉइंट्स है सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन पढ़ा हमने, ट्रांस फैट पढ़ा, ये सब पढ़ा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, एक चीज मिस हुई है वो लिख लो अभी, सेल कंपोजिशन, छोटा सा चीज है, 4 लाइन की चीज, लिस्ट बनाना है। कंपोजिशन ऑफ सेल लिखो या कंपोनेंट्स ऑफ सेल लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ये पूरा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया हमने, कंपोनेंट का परसेंटेज नहीं देखा। तो सेल में सबसे ज्यादा तो पहले तो वाटर है, लेकिन वाटर बायोमोलिक्यूल नहीं, याद रखना, कंपोनेंट पढ़ रहे हैं ना, कंपोनेंट किसके, सेल के। तो वाटर कितना है, 70 to 90%। वाटर इज नॉट बायोमोलिक्यूल, रिमेंबर दिस, वाटर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, समझ गए ना। बायोमोलिक्यूल मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन 10 to 15%, तो मेन तो प्रोटीन हो गया सेल को बनाने में, ठीक है ना। इसके बाद में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, तो सेल के अंदर डीएनए है ना, आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल ये है, 5 to 7% न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद है वो है, ठीक है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, कितना परसेंट, 3%, ठीक है। इसके बाद लिपिड, लिपिड मतलब फैट, लिपिड कितना, 2%, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में आयोन्स, आयोन्स कितना है, 1%। तो दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। सेल के मेजर कंपोनेंट में ये बायोमोलिक्यूल्स को आपको याद रखना है, ठीक। और ये इनऑर्गेनिक, वो भी इनऑर्गेनिक आयोन्स है, वो ये बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, जो हमने पढ़ा है उसको समराइज मैंने कर दिया, ये सेल में मौजूद होते हैं। क्लियर इतनी बात, चलो थैंक यू। तो रिवीजन का क्या हो, कल क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जितना पढ़े हो आप, ठीक है ना। पूरा पानी इधर तक आ गया भाई।